Good morning, everyone. So, today we'll talk about Heisenberg's uncertainty principle. You have already studied about this principle in your 12th standard. Now, what is Heisenberg's uncertainty principle? According to classical mechanics, we can measure both the position and momentum of a moving particle simultaneously with any desired accuracy. But Heisenberg pointed out that when a particle is considered as a wave, that means when a group of waves is associated with a moving particle, it is not possible to locate the particle precisely and measure its momentum accurately at the same time. इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है और वो एक क्वांटम पार्टिकल है, मतलब उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो किसी भी क्वांटम पार्टिकल की अगर हम पोजीशन डिटरमाइन करेंगे तो उसकी हम मोमेंटम को डिटरमाइन करने में डिफिकल्टी होगी, और अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन करेंगे तो पोजीशन को डिटरमाइन करना मुश्किल होगा. वी कैन नॉट डिटरमाइन बोथ द पोजीशंस एज वेल एज मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल of a moving quantum particle simultaneously, but we can measure the position and momentum of a moving classical particle simultaneously. Okay, क्लासिकल पार्टिकल की तो हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, बट क्वांटम पार्टिकल की नहीं. This statement is known as Heisenberg's uncertainty principle and is a consequence of wave-particle duality. ये जो uncertainty आई है position and momentum determination में, simultaneous position and momentum determination में, ये uncertainty क्यों आई है? Because of the wave-particle nature of a moving material particle. अगर हमारे पास जो वेव पैकेट है वो अगर वाइडर होगा, ये हम आगे देखेंगे कि क्यों होता है. अगर हमारे पास वेव पैकेट वाइडर होगा तो उस केस में पार्टिकल जो है पूरे वेव पैकेट में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उस केस में पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन करना मुश्किल होगा. पर अगर वाइडर वेव पैकेट है तो उस केस में पार्टिकल की वेवलेंथ को मेजर करना आसान होता है, एंड लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, तो दैट मीन्स उसकी मोमेंटम को भी डिटरमाइन करना आसान होगा. पर अगर वेव पैकेट को हम बहुत ही नैरो कर दे तो उस केस में नैरो वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल की पोजीशन को निकालना आसान है, बट नैरो वेव पैकेट में उसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन करना मुश्किल है. So this uncertainty principle is only because of the wave particle dual nature of a moving material quantum particle. Now if delta x is uncertainty in position measurement along x direction and delta px is the uncertainty in momentum in the same direction, then their product is of the order of h cut, where h cut is h upon 2 pi. So this is the statement of mathematical representation of Heisenberg's uncertainty principle. Delta x into delta px is nearly equal to h cut, where h cut is h upon 2 pi. Now if delta y is the uncertainty in position measurement along y direction and delta py is the uncertainty in momentum in the y direction, then their product is also nearly equal to h cut. Similarly for the z direction, delta z into delta pz is nearly equal to h cut. ये जो तीनों रिलेशंस हैं इनको हम कहते हैं पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन. ना और भी रिलेशंस होते हैं. नेक्स्ट वन इज द टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी. देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जब हम इसको मल्टीप्लाई किया, इट कम्स आउट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h कट, h अपॉन 2 पाई. 2 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती, प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या यूनिट होती है? जूल सेकंड. तो कोई भी
ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट करके यूनिट जूल सेकंड आती है, वो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शो करते हैं। जैसे कि टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी, if delta E is the uncertainty in measurement of energy and delta T is the corresponding uncertainty in the measurement of time, then delta E into delta T is also nearly equal to h cut. इसके यूनिट भी क्या है, डेल्टा E into डेल्टा T. डेल्टा E एनर्जी है जूल्स, डेल्टा T टाइम है सेकेंड, तो इसकी यूनिट भी जूल सेकेंड है. So the unit of left hand side should always be equal to the unit of right hand side. So this relation, energy time uncertainty relation, it shows that in simultaneous determination of energy and time of a particle, the product of uncertainties in energy and time measurements is of the order of h cut. Now, और कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी यूनिट जूल सेकेंड होती है? Another parameter is angular momentum and angular displacement uncertainty. तुमने बोल्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में पढ़ा होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. mvr क्या है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम j से डिनोट भी करते हैं. लीनियर मोमेंटम को l से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को j से. तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट भी प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट के बराबर होती है. तो एंगुलर मोमेंटम के साथ ऐसी कौन सी चीज हम प्रोडक्ट कर सकते हैं विच शोज द अनसर्टेनिटी रिलेशन? So Heisenberg's uncertainty relation puts limits on the errors delta G and delta theta in the simultaneous measurements of angular momentum J and angular displacement theta of a particle. So we have another uncertainty relation, delta J into delta theta is nearly equal to h cut, where delta J is the uncertainty in the measurement of angular displacement, angular momentum, and delta theta is the uncertainty in the measurement of angular displacement. So in all we have three uncertainty relations. One is the position momentum uncertainty relation, next is the energy time uncertainty relation, and then we have angular momentum and angular displacement uncertainty relation. Now next, these two are very important topics, Heisenberg's gamma ray microscope and diffraction of beam of electrons by a slit. ये दोनों थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब हमने बोल तो दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है. अब उसको हमें एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करना है. The first experimental verification is the Heisenberg's gamma ray microscope. जो इसका फिगर है, it is this figure 1.12. इसमें क्या है? S हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है और जो इसमें हम इंसिडेंट बीम्स यूज कर रहे हैं वो कॉम्पटन इफेक्ट वाली यूज कर रहे हैं. दैट मींस एक्स रेज और गामा रेज. ठीक है, जब एस सोर्स से इंसिडेंट फोटॉन्स ओ पे स्ट्राइक करते हैं, जो पॉइंट ओ है यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को रखा है, तो क्या होगा? गामा रेज है या एक्स रेज है, तो फिर वो जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे इट विल रिजल्ट इन कॉम्पटन इफेक्ट. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे. ये हमारे पास व्यू है ए बी. जब हम यहां से देखो इस पॉइंट से जब हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन को इस रीजन तक देख सकते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होगा
आफ्टर कोलिजन विद द इंसिडेंट फोटोन बीम, वो अगर इस ए बी लोकेशन या ए बी कोन के अंदर आता है तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे टू स्टडी द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शुरू से एक बार पढ़ते हैं। To find the order of limitations in the measurement of position and momentum of an electron, जो इलेक्ट्रॉन हमने O पोजीशन पे रखा है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करने की कोशिश करेंगे। Heisenberg suggested an experiment with its high power gamma ray microscope. Gamma ray microscope है तो इस में जो हम इंसिडेंट बीम यूज कर रहे हैं दैट इज गामा रे beam. In this experiment, photons from source S collide with the electron in a beam. As shown in the figure, some of these photons are scattered into the microscope and enable the observer to see the flash of light, which in turn enables to find position and momentum of the electron at some time. जब हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट को तो जब फोटोन कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो देयर विल बी अ रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। जब फोटोन स्कैटर होगा अगर वो विद इन द रीजन ऑफ ऑब्जर्वर हो रहा है तो एक फ्लैश ऑफ लाइट नजर आएगी। अगर फोटोन स्कैटर हो रहा है दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है तो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की फिर हम पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? Now as the photons from source S collide with electrons, क्या होता है? Some of these electrons bounce into the microscope and enable the some of these photons bounce into the microscope and enable the observer to see the electron and thus to find out the position and momentum of the electron at some instant of time. Classically तो हम ये कह सकते हैं ऑब्जर्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकता है बट क्वांटम मैकेनिकली देयर आर सम लिमिटेशंस। ना फर्स्ट चीज क्या है? देखो ये एक फॉर्मूला है विच इज अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल थ्योरी। क्या कहता है? जो हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो डिपेंड करती है ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट which is used to illuminate the electron, that is delta x is equal to lambda dash upon 2 sin theta, where lambda dash is the wavelength of the scattered photon entering the microscope and theta is the semi-vertical angle of cone of light from the electron into the microscope. This angle theta, this is the semi-vertical angle. What is delta x? This is the minimum distance between two points which are seen as separate through microscope. मतलब ये एक मिनिमम डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में इन द फील्ड ऑफ व्यू जहां पर हम देख रहे हैं these 2 points which can be distinguished as separate. That means it is the minimum distinct measurable distance. दो पॉइंट्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस को जो हम मेजर कर सकते हैं वो मेजर कर सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन 2 साइन थीटा। अगर इससे ज्यादा पास है कोई भी दो पॉइंट्स तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है? अगर रिकॉइलिंग के बाद इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है बाय लेस देन डेल्टा एक्स तो माइक्रोस्कोप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर हमें रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करनी है तो डेल्टा एक्स जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल रखना पड़ेगा। डेल्टा एक्स किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा डैश के। इसका मतलब अगर हम ऐसी वेवलेंथ यूज करें जो बहुत कम है
तो डेल्टा एक्स भी बहुत कम हो जाएगा। तो मिनिमम वेवलेंथ रेज कौन सी होती है? एक्स रेज और गामा रेज। Thus delta x क्या है? Will be the smallest error or the uncertainty in the measurement of position of the electron. So delta x is the measure of accuracy in position determination because any 2 points with separation less than this are not distinguished. And this is the minimum uncertainty in the measurement of position of particle. इससे कम अगर पार्टिकल सेपरेटेड है, अगर इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल हुआ है उसकी पोजीशन डेल्टा एक्स से भी कम अमाउंट में चेंज होती है तो वो डिटरमाइन हम नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कम से कम पोजीशन चेंज को मेजर कर सके। तो ये जो गामा रे माइक्रोस्कोप है इसका जो पोजीशन चेंज इन पोजीशन मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन 2 साइन थीटा। तो अगर हम लैम्डा डैश को स्मॉल रखेंगे तो डेल्टा एक्स भी स्मॉल होगा। दैट मीन्स वो कम से कम चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर कर सकता है। अब हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल गई लैम्डा डैश अपॉन 2 साइन थीटा। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस कम्स फ्रॉम द ऑप्टिकल थ्योरी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। Now from equation 1.77 it is also clear that smaller the wavelength, smaller is the uncertainty in position measurement. So for this one must use light of shortest wavelength, say gamma rays here. But a short wavelength photons suffer Compton recoil from the electron. पर हमें ये पता है अगर हम इंसिडेंट बीम को गामा रेज यूज कर रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगी then it will result in the scattering of photon and recoiling of electron. That means it will result in Compton effect. Now in order to observe the electron, the photon must enter the microscope within the angle 2 theta after interacting with the electron. अगर photon इस एंगल के बाहर गया, इधर गया या इधर गया, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो 2 थीटा रेंज के अंदर ही घुसा है फोटोन माइक्रोस्कोप में, तभी हम इलेक्ट्रॉन को मेजर कर सकते हैं। नाउ इन स्कैटरिंग ये सबको पता है मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम द फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन। Therefore, the component of electron along x-axis will have an uncertainty delta px equal to the difference in change of two extreme values of component of momentum of scattered photon along x direction. इस लाइन का क्या मतलब है ये मैं अभी आप सबको समझाऊंगी। उससे पहले ये रिलेशन देखो जो डिराइव होगा फ्रॉम द कॉम्पटन इफेक्ट। हम क्या करते हैं, जैसे हमने कॉम्पटन इफेक्ट में किया था वही यहाँ पे करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लगाओ, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। ना इनिशियली फोटोन की मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इनिशियली फोटोन की मोमेंटम क्या है? लैम्डा इज एच अपॉन पी होता है, सो पी इज एच अपॉन लैम्डा। सपोज लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट गामा बीम, h upon lambda. Now what will be the initial momentum of electron? Electron initially rest पे है तो उसका जो momentum होगा वो क्या होगा? 0, ठीक है। Now what will be the momentum after collision? फोटोन जो है वो स्कैटर होगा इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। Let that change in wavelength is lambda dash. So lambda dash is the wavelength of scattered photon plus हमारे पास क्या आएगा? अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखो,
अलोंग एक्स एक्सिस देख रहे हैं हम, फोटोन जो है इस डायरेक्शन में स्कैटर होगा, किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर हो सकता है। सपोज वो एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, कैसे लिखा है ये मैंने, ये देखो, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ scattered photon and let's say this angle is alpha। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एंगल कौन सा होता है, जो एंगल होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड बीम एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगी अलोंग एक्स एक्सिस तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा डैश कॉस अल्फा प्लस द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर recoiling, let's say that is EP। तो EP हमारे पास क्या हो गया, अब h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश कॉस अल्फा। ठीक है, ये अल्फा जो है कोई भी एंगल हो सकता है, तो हमें EP मिल गया। EP हमारे पास क्या है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिकॉइलिंग। अब अल्फा की वैल्यू वेरी कर सकती है विद द डायरेक्शन ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। तो अगर फोटोन सिर्फ 2 थीटा एंगल के अंदर स्कैटर हुआ है तभी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। तो दो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज आएंगी, एक तो अगर फोटोन इस डायरेक्शन में स्कैटर होता है, दूसरा इस डायरेक्शन में स्कैटर होता है, बाकी जो बीच में होंगे। तो एक्सट्रीम वैल्यूज ये दो हैं। जब फोटोन इस डायरेक्शन में स्कैटर हुआ तो कितना एंगल बनाया उसने, ये कंप्लीट एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो एक मोमेंटम आई h अपॉन लैम्डा minus h upon lambda dash cos 90 minus theta, here alpha is 90 minus theta। दूसरा एक्सट्रीम रीजन कौन सा है, ये वाला, ये एंगल कितना होगा, कंप्लीट एंगल विद द एक्स एक्सिस, ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो दिस कंप्लीट एंगल विल बिकम 90 प्लस थीटा। तो हमारे पास एक और मोमेंटम आया h upon lambda minus h upon lambda dash cos 90 plus theta। Lambda is the wavelength of incident photon, lambda dash is the wavelength of scattered photon। ठीक है, and theta is the semi vertical angle। तो हमारे पास दो एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम की, जो मेजर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ गामा रे माइक्रोस्कोप। तो स्प्रेड कितना हुआ इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी एक्स, स्प्रेड कितना होगा, द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, मोमेंटम स्प्रेड डेल्टा पी एक्स कितना हुआ, h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश cos 90 प्लस थीटा माइनस h upon lambda minus h upon lambda dash cos 90 minus theta। Now cos 90 plus theta क्या होता है, minus sin theta, cos 90 minus theta होता है sin theta। So substitute the values here। Now what we get, delta px is equal to 2h upon lambda dash sin theta। So what will be the product of delta x into delta px? Delta x हमारे पास क्या है from optical theory, equation 1.77, delta x is lambda dash upon 2 sin theta and delta px is 2h upon lambda dash sin theta। So this gives delta x into delta px nearly equal to h। So this result shows that the product of uncertainty in x component of momentum of electron and the uncertainty in its position along x direction is of the order of the Planck's constant। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच कट, वेयर एच कट इज एच अपॉन 2 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है उसका ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या होगा 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड।
सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी प्लैंक्स कांस्टेंट के ऑर्डर के आए हैं, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻34 जूल सेकंड होगा, दैट मींस ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू h कट से या h कट अपॉन 2 से ज्यादा होगी एज प्रेडिक्टेड इन द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो अनसर्टेनिटीज के बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2 भी होता है। तो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो वो गलत नहीं होगा। यूजुअली जो अगर एग्जाम में रिलेशन लिखने के लिए आता है तो यू शुड राइट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। इसी एच कट के रिलेशन से ही न्यूमेरिकल्स करोगे, वो गलत नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी नियरली इक्वल टू एच आया है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन एच कट तो होगा, क्योंकि एच कट जो है वो h अपॉन 2 पाई है। So this product is greater than h cut, so which satisfies the Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle एग्जाम में आता है तो लिखोगे डेल्टा x इंटू डेल्टा px greater than equal to h cut, where h cut is h upon 2 pi. ठीक है, so this is the first experimental determination of Heisenberg's uncertainty principle. इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्लिट। इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। नाउ ये इसकी फिगर है, डेरिवेशन जो है मैं इसका बहुत सिंप्लीफाइड कराऊंगी, ये वाला करने की जरूरत नहीं है, मैं साइड में डेरिवेशन लिखूंगी इसका। तो सबसे पहले क्या है, दिस इज द नैरो स्लिट। जैसे तुमने 12th स्टैंडर्ड में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ा है, जब हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं S1 और S2, उस केस में जो हमारे पास सुपरपोजिशन निकल कर आती है वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। पर अगर सिंगल स्लिट है उस केस में हमारे पास जो स्क्रीन पर ऑब्जर्व होता है दैट इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पर हम जो इंसिडेंट बीम यूज करेंगे वो हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम मेजरमेंट करनी है कि हम उसको साइमल्टेनियसली कर सकते हैं या नहीं, और या फिर कर सकते हैं तो कितनी अनसर्टेनिटी आती है। तो ये जो स्लिट है लेट्स से इसकी विड्थ b है, तो पहली हमें क्या चीज निकालनी है, अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स से स्लिट ए बी पर आती है और यहाँ से डिफ्रैक्ट होती है, और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ऑब्जर्व होता है इस स्क्रीन पर। थीटा जो है दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, दिस व्हाट इज डिफ्रैक्शन, अगर कोई ऑब्स्टेकल हमारे पास आता है तो उसके थ्रू द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल्स हैं, इससे जो है लाइट का बेंड होना। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास स्लिट है बी, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरी स्लिट में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दिस लेंथ b। तो ये सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा x इक्वल टू b। तो हमें क्या मिल गया, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्लिट को एंटर करेगा इट विल सफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, और जो डिफ्रैक्शन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये तुमने 12th स्टैंडर्ड में करी भी है इक्वेशन। वहां पे स्लिट विड्थ a ले रखी होती है, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ स्लिट विड्थ हमने b ली है, so b sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, एंड फॉर द फर्स्ट मिनिमा n इज इक्वल टू 1,
So b sin theta is equal to lambda. Now what is b? b हमारे पास क्या है? b डेल्टा x है. तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? देखो मैं यहाँ पे अब डिराइव कर रही हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में. b is equal to delta x and b is also equal to n lambda upon sin theta, where n is 1. So delta x or equal to b is equal to lambda upon sin theta. ठीक है? Now what we have to measure now? The uncertainty in momentum. Now electron जो है अब वो diffract होगा, so now it will acquire a momentum along x direction. So uncertainty in momentum along x direction क्या होगा? देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हुआ, तो लेट्स से इट्स मोमेंटम इज p. तो along y एक्सिस इसका अगर हम इसको y एक्सिस के along लिखते हैं तो इसका रेवोल्यूशन क्या होगा? p cos थीटा. और x एक्सिस के along इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? p sin theta. So what is the uncertainty in momentum along the x-axis? The uncertainty is p sin theta. तो यहां पर हमारे पास आ गया होप क्लियर है. तो अब हमारे पास आ गया डेल्टा p और डेल्टा p x. We are finding along the x direction. So delta px हमारे पास है p sin थीटा. 1 सेकेंड, ये सारा गड़बड़ हो गया. डेल्टा पी एक्स हमारे पास आया p साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो. सिंपल. साइन थीटा क्या आ गया? लैम्डा अपॉन डेल्टा एक्स और मल्टीप्लाई में क्या रह गया हमारे पास? p. सो डेल्टा x इंटू डेल्टा p क्या हो गया? लैम्डा इंटू p. लैम्डा क्या होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशन? h अपॉन p. यहाँ पे ऑलरेडी p है. ठीक है, तो हमारे पास आ गया डेल्टा x इंटू डेल्टा. इसी डेरिवेशन को करना, जो इसमें दे रखा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. मेक इट सिंपल. तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इज h अपॉन p इंटू p. p और p होगा कैंसल आउट और डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स हमारे पास फिर से आ गया ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, which again verifies the Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं this is always greater than equal to, so this shows delta x into delta px will be greater than equal to h cut or h cut upon 2. ठीक है,
So this again verifies the Heisenberg's uncertainty principle. होप यहाँ पे सबको क्लियर हो गया है. तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, किसी भी क्वांटम पार्टिकल की जो मोशन में है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते. जो उनके प्रोडक्ट्स हैं अनसर्टेनिटीज की, वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट होते हैं या ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट होते हैं. Or we can say delta x into delta px is greater than equal to h cut or greater than equal to h cut upon 2. एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो डेल्टा x into डेल्टा px greater than equal to h cut का फॉर्मूला यूज करना. दो हमने आज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस देखे विच आर बेसिकली दी थॉट एक्सपेरिमेंट्स, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट्स. पहला है हाइजेनबर्ग्स गामा रे माइक्रोस्कोप, जिसमें हमने कॉम्पटन इफेक्ट का यूज किया और देखा कि इसके थ्रू भी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकल के आता है. फिर हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पढ़ा फ्रॉम अ सिंगल स्लिट using the relation of the diffraction due to single slit b sin theta is equal to n lambda. हमने derive किया the product of uncertainties in position and momentum, which again comes out to be of the order of Planck's constant. So this again verifies the Heisenberg's uncertainty principle. Delta x into delta px greater than equal to h cut or h cut upon 2. Now in the next class, we will see the applications of Heisenberg's uncertainty principle, which is also very important from your examination's point of view.